Dear students, today I am going to discuss about a club which is at Meherchand Polytechnic College, London. The name of the club is Red Ribbon Club. This club was established by Pushpa Gujarat Science City, Kapurthala. The main function of this club is to aware students and people regarding awareness against some diseases and other menace like AIDS, drug addiction, stubble burning, diseases like tuberculosis, hepatitis, diabetes. Principal Dr. Jagrup Singh is the patron of this Red Ribbon Club. Myself, Sandeep Kumar, lecturer in pharmacy, is president of this club, while Captain Pankaj Gupta is General Secretary of Red Ribbon Club, which is at Meherchand Polytechnic College, London. Various activities like quiz contest, poster making competitions. Apart from this, awareness rallies, poster making competitions, quiz competitions, and similar other competitions are also held by this club during the session. Principal Dr. Jagrup Singh leads from the front in organizing these competitions. For example, AIDS awareness rally is organized every year on World AIDS Day, that is on 1st December every day. Principal Dr. Jagrup Singh flag off this rally, awareness rally, every year, and ask the students to give the message to the persons regarding awareness against AIDS. The main emphasis is given by this club regarding the awareness on AIDS and drug addiction. Apart from this, we also cover some other diseases like diabetes, cancer. We make you aware regarding cancer, diabetes, hepatitis, tuberculosis. Recently, we have also organized a quiz competition, online quiz competition on COVID-19. The main emphasis is given on AIDS and drug addiction. So this club was established by giving the main emphasis on AIDS, because AIDS was the hot topic on those days. I hope you know about AIDS. AIDS is a viral disease caused by a virus known as HIV virus, human immunodeficiency virus. Main symptoms, first of all I will like to tell you the modes of transmission. कौन कौन से तरीके हैं जिसके साथ ये बीमारी जो है फैलती है. What are various modes of transmission of AIDS? एड्स के फैलने के चार तरीके हैं.
फर्स्ट वन इज with unprotected sex with infected partner. Unprotected sex with infected partner. Second one is from pregnant mother to the fetus. अगर मदर जो है HIV पेशेंट है तो उसके जो बच्चे को भी ये हो सकता है, हो जाएगा. थर्ड वन इज with contaminated needles and syringes. जो आप मालूम है एक नीडल जो है एक पर्सन को यूज करके दूसरे को लगाई जाए, वही नीडल सिरिंज वगैरह जो है, तो अगर पहले जिसको लगाई थी वो HIV पेशेंट है तो दूसरे के होने के पूरे चांसेस है. HIV पेशेंट होने के दूसरे के भी पूरे चांस है. तो फोर्थ जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अगर ब्लड को टेस्ट नहीं किया गया, किसी को ब्लड की जरूरत है तो ऐसे विदाउट टेस्टिंग ब्लड अगर जो है चढ़ा दिया जाए पेशेंट को, उसको टेस्ट नहीं किया गया, तो अगर ब्लड HIV पॉजिटिव है, HIV है उसमें वायरस, तो फिर जो है जिसको जो ब्लड चढ़ाया गया है वो भी जो है उसके पूरे चांस हैं HIV पेशेंट बनने के. तो ये चार तरीके हैं जिसके साथ जो है एड्स हो सकती है. ये चार तरीके. फर्स्ट वन इज unprotected sex with infected partner. Second is from mother to fetus. Third one is with contaminated needles and syringes. Fourth one is with blood transfusion. blood जो है अगर टेस्टेड नहीं है तो उसमें HIV है तो वायरस, तो उसके साथ जो है एड्स हो सकती है. तो अब जो है ये एड्स होती क्या है? एड्स AIDS अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. अक्वायर्ड का मतलब है गेन करना. इम्यूनो मीन हमारी बॉडी की पावर टू फाइट विद इन्फेक्शन, फाइट विद डिजीजेस. अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी मीन कमी, डेफिशिएंसी मीन कमी. सिंड्रोम मीन ग्रुप ऑफ सिम्टम. हमारी बॉडी में बीमारियों के साथ झगड़ा करने की जो पावर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, कमी हो जाती है, धीरे धीरे जो है बॉडी में पावर जो है वो खत्म हो जाती है. विद दिस डिजीज अगर HIV वायरस जो है हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो उसके साथ हमारी बॉडी में धीरे धीरे बीमारियों के साथ झगड़ा करने की पावर जो है वो खत्म हो जाती है. एंड वेरियस ऑपर्चुनिस्टिक इंफेक्शन अटैक ऑन आवर बॉडी. जैसे कि जो मौका ढूंढती है ऑपर्चुनिस्टिक इंफेक्शन में, जो हमारी बॉडी में एंटर करने की जो है मौका ढूंढती हैं, तो वो जो है जल्दी ही हमारी बॉडी के ऊपर अटैक कर देते हैं. तो कौन सी है? जैसे कि सबसे ज्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अबंडेंट है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलाई जो है, तो उसके साथ TB जो है. इसलिए जो है जो एड्स का पेशेंट होता है यानी कि HIV पॉजिटिव होता है तो सबसे पहले उसको ट्यूबरकुलोसिस के होने के पूरे चांस होते हैं, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बहुत कॉमन है, बहुत अबंडेंट है, तो पेशेंट को सबसे पहले यही अटैक करता है. इसके अलावा और बहुत सारी इंफेक्शन जो है वो धीरे धीरे जो है पेशेंट को जल्दी जो है खांसी, बुखार जो है, पेट की इंफेक्शन, गैस्ट्रो इन्फेक्शन वगैरह जो है, थ्रोट इन्फेक्शन, ऐसी बहुत सारी डिजीजेज जो है धीरे धीरे वो पेशेंट को जो है अटैक करती हैं. अल्टीमेटली जो है इतनी वीकनेस आ जाती है कि उसकी डेथ हो जाती है. तो अब पता कैसे चलता है? तो जब पेशेंट जो है उसको जब टेस्ट करवाता है तो हमारी बॉडी में आपको पता है कि 3 तरह के सेल्स हैं. रेड ब्लड सेल, WBC सेल जो व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स. तो इनके सभी को फंक्शन मालूम है. रेड ब्लड सेल जो हीमोग्लोबिन वगैरह है, तो WBC जो है ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है. ये हमारी अगर ये बढ़ जाती हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारी बॉडी के सोल्जर बढ़ गए. WBC जो है इन केस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं. प्लेटलेट्स आपको पता है कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है प्लेटलेट्स. और डेंगू वगैरह या ऐसी चीज में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है. तो जो WBC है
इसकी टाइप है जैसे CD4 सेल, ये हमारी बॉडी में नॉर्मली 900 पर क्यूबिक मिलीमीटर होने चाहिए, लेकिन ये होता क्या है, अगर HIV वायरस हमारी बॉडी में आ जाता है तो इमीडिएटली इसका फॉल हो जाता है, 900 से इमीडिएटली ये कम हो जाता है। पहली बात तो जो फर्स्ट HIV पेशेंट बॉडी में एंटर करता है तो पहले दूसरे हफ्ते में जो है जस्ट फ्लू लाइक सिम्टम जो है वो होते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स, खांसी, थोड़ा बहुत गला खराब वगैरह जो है, थ्रोट इन्फेक्शन होगी, थोड़ा हल्का फीवर हो गया। तो इसके बाद क्योंकि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी होती है तो ये जल्दी जो है पेशेंट थोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है 1-2 दिनों में, तो उसको जो है पता नहीं चलता है HIV पेशेंट का, जस्ट थोड़ा सा फ्लू लाइक सिम्टम होके खत्म हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जो है वो हमारी बॉडी के जो सोल्जर्स हैं WBC जैसे CD4 सेल है वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाती है, तो HIV वायरस जो है उनको मारना शुरू कर देता है। तो उसके साथ क्या होता है, तो नॉर्मल 900 चाहिए, तो किसी भी कंट्री के जो रक्षक हैं वो उसके सोल्जर्स ऐसे हैं, हमारी बॉडी के जो सोल्जर्स हैं WBC, तो एड्स को जो प्रिवेंट जैसे है जो इसके साथ झगड़ा करते हैं CD4 सेल जो है, तो CD4 सेल जो है ये 900 होते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर इन नॉर्मल पेशेंट, इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स। तो एड्स के केस में ये अगर तो 500-700 हो तब तक वो इसके ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, एड्स के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। जब इसकी गिनती जो है 200-300 तक आ जाए, 200-300 रह जाए, तो फिर जो है ये अलार्मिंग है। तो फिर जो हॉस्पिटल्स हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं इसका एड्स का, जैसे कि जलंधर में है ART सेंटर है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर जो है सिविल हॉस्पिटल में एक सेंटर बना हुआ है, ART सेंटर कह देते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर। तो वहां पे पेशेंट जो है वहां पे जाके अपना नाम जो है रजिस्टर वगैरह करवाता है, तो ट्रीटमेंट जो है उसका शुरू हो जाता है। तो वहां पे एंटीवायरल ड्रग जो है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है वो दी जाती है। तो उसके साथ जो है जो सेल्स है वो गिनती भी बढ़ती है, थोड़ी इम्यूनिटी वगैरह भी जो है बताया जाता है इम्यूनिटी कैसे जो है थोड़ी इंक्रीज हो सकती है। तो एड्स जो है इसका इलाज नहीं है, सिर्फ जो है डेथ को डिले किया जा सकता है। HIV पेशेंट जो है नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह जो है वो जिंदगी जी सकता है, लेकिन अगर जब आफ्टर 10 ईयर 15 ईयर जब जो है HIV पेशेंट जो है एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसमें टोटली इम्यूनिटी जो है धीरे धीरे खत्म हो गई है टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, तो फिर जो है उसका जो है डेथ यकीनी है। तो पेशेंट जो है उसको अवेयर जो है करने की जरूरत है कि आपने मेडिसिन जो है ये जो आपको दी जाती है, जैसे ART सेंटर वाले जो है JDUBD वगैरह जो और भी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है उसमें ड्रग्स वगैरह देते हैं, तो ये मेडिसिन वगैरह जो है ये सारी पेशेंट को दी जाती है, और उसका जो है पूरा एड्रेस वगैरह जो है वो नोट किया जाता है और उसको फॉलो अप भी किया जाता है कि पेशेंट जो है यहाँ पर है कहीं चला तो नहीं गया। तो एड्स की जानकारी ही इसका इलाज है, एड्स की जो जानकारी है वही इसका इलाज है। तो पेशेंट जो है जो इंडिविजुअल्स हैं, तो जैसे आप स्टूडेंट्स हो तो आपने अपने आसपास पीपल वगैरह जो है लोग हैं जो उन सभी को जो है अवेयर करना है इसके रिगार्डिंग कि एड्स फैलती कैसे है। मैंने आपको 4 रीजन बता दिए, 4 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन बता दिए कि ये कैसे फैलती है। अब ये तकरीबन जो है इंडिया में तकरीबन 21 लाख पेशेंट है इसमें इंडिया के जो जिनको HIV पेशेंट है, जिनको एड्स बल्कि एड्स धीरे धीरे में एड्स में डेवलप जो हो जाएंगे। HIV पेशेंट एक बार हो गया तो डिजीज तो हटनी नहीं है, वो एड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि फाइनल स्टेज में पहुंच जाएगा। HIV पेशेंट जब फाइनल स्टेज में पहुंच जाता है उसको कहते हैं उसको एड्स हो। तो ऐसे ही साउथ अफ्रीका का एक कंट्री है स्वाजीलैंड, उसकी जो पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन 13 लाख है, तो अप्रोक्सीमेटली 4 लाख पेशेंट जो है उनको वहां पे जो है HIV पेशेंट है, यानी कि हर चौथा पर्सन जो है, तीसरा चौथा पर्सन जो है वो HIV पेशेंट है। तो HIV पेशेंट की डेथ यकीनी है,
वो नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, जो है डेथ को डिले किया जा सकता है, लेकिन डेथ को जो है टाल नहीं सकते। डिले कर सकते हैं लेकिन सर्टन है। तो ये जो बच्चे रेड रिबन क्लब जो है इसमें जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे बच्चे जो है सारे जो है अपना अपना नाम दे देंगे। कोई इसमें कंडीशन नहीं, कोई पैसा नहीं है। तो इसमें जस्ट एक एलिजिबिलिटी है कि यू शुड बी एंथुसियास्टिक, यू शुड हैव ज़ील टू वर्क। तो अगर आप ऐसा है तो आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर जो है आप रेड रिबन क्लब आपने ज्वाइन करना है, मेरे पास आके नाम दे देना है। फिर वेरियस एक्टिविटीज जैसे कि एड्स अवेयरनेस रैली है, स्टबल बर्निंग रैली है, पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, क्विज कंपटीशन है, ये सारे जब ऑर्गेनाइज किए जाएंगे तो यू हैव टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। आपने जो है मेरे साथ काम करना है, ठीक। तो मैं जो है आशा करता हूँ आप जो है रेड रिबन क्लब ज्वाइन करेंगे और समाज की तरक्की खुशहाली के लिए जो है अपना जो है वो योगदान डालेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।